السلام علیکم ناظرین اگلی صبح قادر خان رخصت ہو رہا تھا۔ سمن تاش نے نابینا موسیقار کو اپنے کمرے میں بلا رکھا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں راز کی بات بتا دوں تو تم غزنی تک پہنچا سکتے ہو، سمن تاش نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں تم پر کس طرح اعتبار کر سکتی ہوں، اور دوسرے یہ کہ غزنی پیغام لے کر کون جائے گا۔ میرے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں جس سے میں آپ کو یقین دلا سکوں کہ میں قابل اعتبار آدمی ہوں، نابینا مغنی نے کہا۔ اگر آپ کا ایمان وہی ہے جو میرا ہے تو آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ غزنی کون جائے گا، ایک گھوڑے کا انتظام کریں اور گھوڑے کی باگ میرے ہاتھ میں دے دیں، میں آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا، میں بہت دن غائب رہوں گا، پھر آپ کے پاس آ جاؤں گا، سمن تاش نے کہا۔ قسم کھاؤ کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ نہیں شہزادی، موسیقار نے کہا، میں قسم نہیں کھاؤں گا۔ قسم کھا لینے سے کسی کی روح کا آئینہ شفاف نہیں ہو جایا کرتا۔ سب سے زیادہ اور بڑی قسمیں بے ایمان اور بددیانت آدمی کھایا کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میرے ساتھ رہے گا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے، واپس آؤں گا تو آپ کو لوٹا دوں گا۔ آدمی کب بھیجا جائے؟ ابھی، سمن تاش نے کہا۔ تمہارا آدمی ابھی روانہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، نابینا مغنی نے کہا۔ آپ گھوڑا لائیں اور بتائیں کہ پیغام کیا ہے۔ تمہارے آدمی کو سلطان محمود کے پاس جانا ہے، سمن تاش نے کہا۔ اسے کہنا کہ قادر خان، توغان خان اور ابو منصور مل کر خراسان پر حملہ کرنے والے ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بھی تیار ہے۔ سلطان سے کہنا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک بیٹی اپنے باپ کے خلاف محاذ میں شامل ہو سکتی ہے، لیکن مجھے آپ پہلے اسلام کی بیٹی سمجھیں، اس کے بعد مجھے اپنی بیٹی سمجھیں، اور اس کے بعد میں اس باپ کی بیٹی ہوں جسے اپنے مذہب کی بجائے اپنا تخت و تاج پیارا ہے۔ سلطان سے کہنا کہ میں جانتی ہوں کہ یہ تینوں مل کر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ انہیں ایک ہی حلے میں صاف کر دیں گے، لیکن جو کشت و خون ہوگا اسے تصور میں لیں۔ غزنی، خراسان، خوارزم، بلخ اور بخارا کی وہ مائیں جن کے جوان بیٹے آپس میں لڑ کر مارے گئے تھے، آج بھی اسی طرح روتی ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کی لاشیں دیکھ کر روئی تھیں۔ ان کی آہوں اور فریادوں سے زمین و آسمان کانپ رہے ہیں۔ غزنی کے سلطان سے کہنا کہ میرا باپ قادر خان اور توغان خان سے خائف ہے، آپ میرے باپ کو صلح اور دوستی کا پیغام بھیج کر اس کے دل سے یہ خوف نکال سکتے ہیں۔ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے فوجوں کو کٹ مرنے سے بچائیں، مجھے اپنے یتیم ہو جانے کا کوئی غم نہیں ہوگا، میری ماں کو بیوہ ہو جانے کا رنج نہیں ہوگا۔ غم اور رنج ہوگا تو یہ کہ جنہیں کفر کے خلاف جہاد میں شریک ہونا تھا وہ خانہ جنگی میں کٹ مرے اور کفر کے ہاتھ مضبوط ہوئے۔ کیا تم یہ ساری باتیں یاد رکھ سکو گے؟ جس طرح میں بتا رہی ہوں اسی طرح اس آدمی کو بتا سکو گے جو غزنی جا رہا ہے؟ اسی طرح بتاؤں گا، نابینا موسیقار نے کہا، اور وہ سلطان محمود کو اسی طرح سنائے گا۔ نہیں، سمن تاش نے کہا، تم موسیقی میں ڈوبے ہوئے انسان میرے جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکو گے۔ تم اپنی دنیا میں گم رہنے والے انسان اس دنیا کو نہیں جانتے جس میں انسان اپنی بادشاہی کی خاطر بے گناہ انسانوں کا خون بہا دیتا اور رعایا پر مذہب کا جنون طاری کیے رکھتا ہے۔ سمن شہزادی، نابینا موسیقار نے کہا، الفاظ کے بھنور سے بہہ رہو، مجھے بتاؤ کہ سلطان تک کیا پیغام پہنچانا ہے۔ میں سب کچھ سمجھتا ہوں اور میں سب کچھ سمجھا سکتا ہوں، تو چلے جاؤ، سمن تاش نے کہا۔ سلطان محمود سے کہنا کہ میرے باپ کو دوستی کا پیغام بھیجو اور اسے یقین دلاؤ کہ غزنی کی فوج اسے قادر خان اور توغان خان سے بچائے رکھے گی۔ ناظرین، ایک گھوڑا شہر میں سے گزر رہا تھا، اس کی باگیں پکڑے ہوئے ایک نابینا دوسرے ہاتھ میں لاٹھی اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ اس کے گھوڑے کے ساتھ سانس بندھا ہوا تھا اور اس نے اپنے کندھے سے کمان اور ترکش بھی لٹکا رکھا تھا۔ اسے بہت کم لوگ جانتے تھے اور جو اسے نابینا مغنی کے نام سے جانتے تھے وہ اسے دیکھ کر ہنس پڑتے تھے کہ اندھا ترکش اور کمان لیے جا رہا ہے۔ گھوڑا شہر کے دروازے سے نکل گیا، وہ نابینا موسیقار تھا، وہ گھوڑے کے آگے آگے پیدل چل رہا تھا۔ شہر سے کچھ دور جا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس نے لاٹھی پھینک دی اور ذرا آگے جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا دوڑ پڑا لیکن اس نے گھوڑے کو سر پہ نہ دوڑنے دیا۔ سوار اندھا تھا مگر وہ خود اعتمادی سے سواری کر رہا تھا اور گھوڑا صحیح راستے پر جا رہا تھا۔ 15-16 میل بعد وہ جنگل شروع ہو گیا جو امراء و زراء کی شکار گاہ تھی۔ وہاں اونچی اونچی ٹیکریاں اور کھڈ اور نالے بھی تھے، اس علاقے کے ہرن مشہور تھے۔ نابینا موسیقار کا گھوڑا چلا جا رہا تھا کہ ایک ہرن سامنے سے دوڑتا گزرا۔
हिरन की रफ्तार कम होती जा रही थी क्योंकि उसके पहलू में 2 तीर उतरे हुए थे। नाबीना मूसीकार ने उसके पीछे घोड़ा डाल दिया। हिरन के ताक़ुब में कुछ घोड़े दौड़ते आ रहे थे, लेकिन वो दूर थे। नाबीना मूसीकार का घोड़ा हिरन के करीब पहुंच रहा था। मूसीकार ने कंधे से कमान उतारी और तुरकश से तीर निकालकर हिरन पर तीर चलाया। तीर हिरन की पिछली टांग में उतर गया और हिरन की रफ्तार बिल्कुल खत्म हो गई। वो रुका और बैठ गया। मूसीकार ने उसके करीब जा घोड़ा रोका और उधर देखने लगा जिधर से हिरन के ताक़ुब में घोड़े दौड़ते आ रहे थे। वो बहुत से सवार थे। नाबीना मूसीकार हिरन को देख रहा था। घोड़े उसके करीब आ रुके। तब उसने सवारों को देखा। मैंने आपके हिरन को गिरा लिया है, नाबीना मूसीकार ने सवारों से कहा, और वो घबरा गया। उसने सवारों को पहचान लिया था। सवार भी उसे देखकर हैरान हुए। उनमें एक कादर खान था और उसके साथ दूसरे घोड़े पर उसकी बेटी यक्षी सवार थी। बाकी सब कादर खान के मुशीर और मुहाफिज थे। कादर खान उसी रोज अबू मंसूर से रुखसत हुआ था और रास्ते में उसने शिकार खेलना शुरू कर दिया था। इस हिरन को एक तीर उसका और दूसरा अक्षी का लगा था। तीसरा तीर नाबीना मूसीकार ने चलाकर हिरन को गिरा दिया। क्या तुम नाबीना मुगनी नहीं हो जिसने हमें अबू मंसूर के यहाँ नगमे सुनाए थे? कादर खान ने पूछा। उसका साज घोड़े के साथ बंधा हुआ था। अक्षी ने अपना घोड़ा मूसीकार के घोड़े के करीब करके उसकी जहन के साथ साज वाला बंधा हुआ थैला खोल लिया। मूसीकार बुत बन गया। थैले में से साज निकाला गया। इसमें कोई शक ना रहा कि ये वही नाबीना मूसीकार है। मुझे पहले ही शक था कि ये जासूस है। कादर खान की बेटी यक्षी ने कहा, क्या कोई अंधा तीर से हिरन को निशाना बना सकता है? कादर खान ने तलवार निकाल कर कहा, सच बता दो तुम्हारी असलियत क्या है? कादर खान के मुहाफिज अभी उसका घेराव करने के लिए हिले ही थे कि मूसीकार ने घोड़े की लगाम को झटका दिया और रेड़ लगाई। घोड़ा शाही अस्तबल का था। इशारा मिलते ही सरपेट दौड़ पड़ा। कादर खान ने हुक्म दिया, पकड़ लो इसे। मुआवजों ने उसके पीछे घोड़े डाल दिए, मगर मूसीकार बहुत फासला ले गया था और वो एक टेकरी की ओट में चला गया था। मुहाफिज उस पर तीर नहीं चला सकते थे। वो उसको ताक़ुब में रहे। मूसीकार बड़ा अच्छा सवार था। उसने घोड़े को सोच न होने दिया। घोड़ा खड़ फलंगता जा रहा था। बहुत दूर जाकर मूसीकार ने पीछे देखा। उसके ताक़ुब में आने वाले बहुत दूर थे। उन्होंने मायूस होकर ताक़ुब तर्क कर दिया और वापस चले गए। नाजरीन, अबू मंसूर को इतला मिली कि कादर खान जो रुखसत हो गया था वापस आ गया है। अबू मंसूर दौड़ा बाहर आया। कादर खान ने उसे बताया कि उसके दरबार का नाबीना मुगनी नाबीना नहीं है और वो भाग गया है। वो सुल्तान महमूद का जासूस है। कादर खान ने कहा, हमारी रात की बातें सुन गया होगा। रात को वो इस कमरे के करीब भी नहीं था जिसमें हम बातें कर रहे थे। अबू मंसूर ने कहा, हम मालूम करेंगे कि वो रात कहाँ था। मुझे आपकी बेटी पर शक है। कादर खान की बेटी यक्षी ने कहा, वो सुल्तान महमूद की शदई है और ये मूसीकार उसका मंजूर नज़र था। मुझे आपकी बेटी के बूढ़े तालीक पर भी शक है कि वो गद्दार है। अबू मंसूर सोच में पड़ गया। वो जानता था कि सुमन ताज सुल्तान महमूद के खिलाफ लड़ाई के सख्त खिलाफ है। उसके तालीक के मुतालिक उसे मालूम नहीं था। कादर खान और अक्षी अबू मंसूर के पीछे पड़ गए कि वो तालीक और अपनी बेटी के खिलाफ कुछ करे, मगर अबू मंसूर अपनी बेटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था। फिर भी दोनों को बुला लिया गया। जब सुमन ताज से यह कहा गया कि नाबीना मूसीकार नाबीना नहीं था तो वो बहुत हैरान हुई। वो मान नहीं रही थी। सुनो बूढ़े, कादर खान ने तालीक से कहा, तुम जिसका नमक खाते हो उसी के खिलाफ गद्दारी करते हो। अगर बता दो कि वो मूसीकार यहाँ से क्या खबर ले गया है तो हम तुम्हें बख्श देंगे, वरना बहुत बुरी मौत मरोगे। खबरदार। सुमन ताश अपने तालीक के सामने खड़ी हो गई और कादर खान से कहा, अगर मेरे तालीक की किसी ने तौहीन की तो कोई नहीं बता सकता कि यहाँ क्या होगा। हम कशगर के गुलाम नहीं। एक तरफ हो जाओ सुमन। अतालीक ने कादर खान से कहा, एक जरा से खिते की बादशाही तुम्हें खुदा नहीं बना सकती। मैं सुल्तान महमूद का हामी नहीं, हक का हामी हूँ। मैं मूसीकार को अंधा समझता रहा। मैं तुम सबको अंधा समझता हूँ। अगर वो अंधा गजनी का जासूस था तो वो आंखों का अंधा था, रूह का अंधा नहीं था। उसके अंदर ईमान की रोशनी थी। मुझे कुछ खबर नहीं कि वो क्या खबर ले गया है, लेकिन मैं ये कहने से बिल्कुल नहीं डरूंगा कि वो अगर जासूस था तो पक्का मुसलमान था। कादर खान ने अबू मंसूर के कान के साथ मुंह लगाकर बुलंद आवाज से कहा, इस बूढ़े को कैद खाने में डाल दें, ये हमारी जड़ें काट रहा है। अबू मंसूर ने तालीक की तरफ देखा
उसे शायद याद आ गया होगा कि ये बुजुर्ग सूरत इंसान जो उम्र की आखिरी मंजिल के करीब पहुंच चुका था, उसके बाप का भी यह तालीक था, उसका भी यह तालीक यही था, और अब उसकी बेटी भी उससे तालीम और तरबियत हासिल कर रही थी। आप इसका हुक्म मानेंगे या अपने खुदा का? बुजुर्ग तालीक ने कहा, अगर आपको दुनिया अजीज है तो मैं आपको बता देता हूँ कि शिकस्त आपके मुकद्दर में लिख दी गई है। अगर आप रियाया की बगावत बर्दाश्त कर सकते हैं तो तालीक को कैद खाने में डाल दें। सुमन ताश ने अपने बाप के कान के साथ मुंह लगाकर कहा और वह बाहर निकल गई। कादर खान, अबू मंसूर ने कहा, मैंने आपके साथ दोस्ती का और फौजें इकट्ठी करने का मुआहदा किया है, आपकी इताअत कबूल नहीं की। मुझे इतना कमज़ोर ना समझें कि मैं आपके हुक्म का पाबंद हो जाऊं। मालूम होता है आप सुल्तान महमूद से डरते हैं। कादर खान ने कहा, क्या आपको यकीन नहीं आया कि मैं और तोगान खान आपके साथ हैं, सुल्तान महमूद का नहीं? अबू मंसूर ने कहा, मेरे दिल में खुदा का कुछ खौफ अभी बाकी है। मुझ पर बादशाही का नशा अभी इतना सवार नहीं हुआ कि मैंने जिसके हाथों तालीम और तरबियत पाई है उसे कैद में डाल दूं। आप चले जाएं और इस यकीन के साथ जाएं कि मैं सुल्तान महमूद के साथ जंग में आपके साथ हूँ। उसने अतालिक को चले जाने का इशारा किया। अतालिक बावकार चाल चलता बाहर निकल गया। सुल्तान महमूद को उसके जासूस क्या खबर देंगे? अबू मंसूर ने कहा, यही कि हम खुरासान पर हमला करेंगे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो जानता है हम उसके दुश्मन हैं। उसने खुरासान के दिफा का इंतजाम कर रखा है। आप घबराए नहीं, तैयारी में ज़्यादा वक्त ना लगाएं। कादर खान रुखसत हो गया। अतालिक सुमन ताश के पास चला गया और उससे पूछा कि यह कहाँ तक दुरुस्त है कि मूसीकार नबीना नहीं था। सुमन ताश ने उसे बताया कि वो उसे नबीना ही समझती रही है और सुल्तान महमूद को उसी ने पैगाम भिजवाया है, लेकिन मूसीकार ने कहा था कि वो किसी और को भेजेगा। आने वाली तबाही को खुदा ही रोक सकता है। अतालिक ने कहा, मैंने यही पैगाम भिजवाया है कि तबाही को रोको। सुमन ताश ने कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद गजनी चले जाऊंगी, हाँ मुझे कैसी ही सज़ा भुगतनी पड़े। बुजुर्ग अतालिक ने सुमन ताश को जो तालीम दी थी वो रंग दिखा रही थी। सुमन ताश निडर और बेखौफ होती जा रही थी। नाजरीन, वो जवान आदमी जो अबू मंसूर के महल में झुका झुका मरा मरा उदास उदास सा नाबीना मूसीकार बना गया था, वो खुरासान के पहाड़ों चट्टानों और जंगलों को चीरता जा रहा था। उसकी गर्दन तनी हुई और सीना फैला हुआ था। घोड़े को आराम देने के लिए वो उसकी रफ्तार कम कर देता और बड़ी पुरसोज आवाज़ में गाने लगता था। घोड़ा यूं चला जा रहा था जैसे उसकी आवाज़ से मशहूर होकर चला जा रहा हो। उसे अब पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं था। वो गजनी की सल्तनत में दाखिल हो चुका था। गजनी अभी दूर था। उसने चौकियों पर 2 घोड़े बदले और खुद आराम ना किया। उसे वक्त का भी एहसास ना था। दिन था या रात, वो चलता गया। उसे मालूम ना था कि कौन से दिन का सूरज गरूब हो रहा है। जब उसे गजनी की मस्जिदों के मीनार दिखाई देने लगे और वो जब अपने सलार के पास पहुंचा, उस वक्त रात तारीख हो चुकी थी। उसने सलार को बताया कि वो क्या खबर लाया है। सुल्तान महमूद ने हुक्म दे रखा था कि बाहर से कोई जासूस खां आधी रात को वापस आए, उसे उसी वक्त जगा लिया जाए। मूसीकार को, जिसका नाम अभी जफर था, देखते ही और उसकी मुख्तसर सी बात सुनकर सलार उसे सुल्तान महमूद के पास ले गया। अभी जफर ने पहले तो ये बताया कि वो नबीना मूसीकार बनकर अबू मंसूर और सलान खान के महल में दरबारी हैसियत में रहा है। इस तरह उसे अबू मंसूर के दरबार के अलावा उसके घर तक भी रसई हासिल रही है। उसने सुल्तान महमूद को पूरी पूरी रिपोर्ट दी कि कशगर का कादर खान और बलख का तोगान खान अबू मंसूर की फौज को साथ मिलाकर खुरासान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और सुल्तान के कत्ल का मंसूबा भी बन चुका है। अबू मंसूर और सलान खान गजनी के साथ अपनी खानदानी दुश्मनी ख़त्म करना चाहता है। अभी जफर ने सुल्तान को बताया, लेकिन कादर खान और तोगान खान ने उसे इतना खौफ कर दिया है कि वो उनका साथ देने पर मजबूर है। अगर आप उसे फौजी तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर दें तो वो शायद उन दोनों के महाज से अलग हो जाएगा। उसके सलारों के मुतालिक कुछ बता सकते हो? सुल्तान महमूद ने पूछा। सलार तुर्किस्तानी औरतों के तलिस्म में गिरफ्तार हैं, अभी जफर ने बताया। कादर खान ने उन्हें बड़ी ही हसीन और जवान औरतों के जाल में फांस रखा है। वो अबू मंसूर को यही एक मशवरा दिए चले जा रहे हैं कि सुल्तान महमूद पर फौरन वार ना किया गया तो वो छोटी छोटी इमारतों और रियासतों को निगल जाएगा। वो कहते हैं कि सुल्तान महमूद हिंदुस्तान से तो फातेह बनकर आया है, लेकिन इन फतूहात ने उसे फौजी लिहाज से बहुत कमज़ोर कर दिया है। इसलिए चुपके से बहुत जल्द खुरासान पर हमला करके एक मजबूत मुस्तकर बना लिया जाए और वहाँ से छोटे पैमाने के हमले जारी रखे जाएं। अबू मंसूर की फौजी ताकत में कुछ इजाफा हुआ है,
یا اہل خان کے وقت جتنی تعداد ہے؟ سلطان غزنی ابی ظفر نے جواب دیا، ابو منصور نے اس نفری کی کمی پوری کر لی ہے جو اہل خان نے ہماری فوج کے ہاتھوں مروائی تھی۔ میں ابو منصور کی بیٹی سمن تاش کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اس کا بزرگہ تعلق اور اس کی ماں آپ کی پرستار ہیں۔ ماں بیٹی ابو منصور کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ آپ کے خلاف میدان میں نہ آئے۔ سمن تاش بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ میں نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ میں سلطان محمود کی لونڈی بن کر اس کے پاس رہنے کو تیار ہوں۔ کیا اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ نہیں، ابی ظفر نے جواب دیا، اور سمن تاش نے اسے جو پیغام دیا تھا وہ اس نے سلطان محمود کو سنا دیا۔ سلطان محمود گہری سوچ میں کھو گیا۔ سلطان محمود نے ابی ظفر کو انعام و کرام دے کر فارغ کر دیا اور اسی وقت اپنے ایک جوان بیٹے مسعود کو بلایا اور اسے کہا کہ اسے ابو منصور ارسلان خان کے پاس جانا ہوگا اور اسے قائل کرنا ہوگا کہ وہ غزنی کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اسے یقین دلانا ہے کہ اگر وہ دوستی کا معاہدہ کرتا ہے تو اسے سلطنت غزنی کی طرف سے فوجی تحفظ ملے گا۔ سلطان محمود نے مسعود بن محمود کو بہت سی ہدایات دیں اور اسے بتایا کہ اس کے ساتھ کون کون جا رہا ہے۔ ناظرین، مسعود دوسرے ہی دن روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 2 مشیر تھے، دونوں فوجی تھے، اور 20 گھڑ سواروں کا محافظ دستہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ 12-13 دنوں کی مسافت تھی۔ مسعود کے ساتھ تحفوں اور سامان کے لیے اونٹوں کا پورا قافلہ تھا۔ ابو منصور کی عمارت میں پہنچ کر مسعود شہر سے کچھ دور خیمہ زن ہوا اور اس نے ابو منصور کے ہاں اپنا ایک ایلچی اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سلطان محمود کا بیٹا مسعود آپ سے ملنے اور کچھ ضروری امور طے کرنے آیا ہے۔ ابو منصور دوسرے دن شاہانہ شان و شوکت سے مسعود کے پاس آیا۔ تحائف کا تبادلہ ہوا اور مسعود نے اسے سلطان محمود کا پیغام دیا۔ میں آپ کے باپ کی تعریف کرتا ہوں کہ اس کے مخبر بہت ہوشیار ہیں۔ ابو منصور نے کہا، اس کے اندھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہرا ہمارے ساتھ دوستی کر لے تو وہ سننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مسعود نے طنزیہ کہا۔ ابو منصور بہرا تھا اور بہت اونچی آواز میں اس کے کان میں بولتے تھے تو وہ سنتا تھا۔ شہزادے، ابو منصور نے برا مانتے ہوئے کہا، تمہیں باپ نے تیغ زنی سکھا دی ہے، زبان کا استعمال نہیں سکھایا۔ میں اس اندھے کی بات کر رہا ہوں جو اندھا نہیں تھا لیکن میرے دربار میں بڑی کامیابی سے نابینا موسیقار بنا رہا۔ اسی نے تمہارے باپ کو یہ خبر دی ہے کہ ہم سلطنت غزنی کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے تم دوستی کا پیغام لے کر آئے ہو۔ محترم، مسعود نے کہا، میں پیغام لے کر آیا ہوں، درخواست نہیں، اور میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ کون سے نابینا موسیقار کی بات کر رہے ہیں جو ہمارا مخبر تھا۔ میں آپ کے ساتھ سیدھی سی بات کرنے آیا ہوں کہ آپ اگر اپنی عمارت کو زندہ و سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو قادر خان اور توغان خان کی دوستی ترک کر دیں۔ آپ تینوں کی فوج 600 ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنے بڑے بھائی اہل خان کا انجام آپ کو یاد ہوگا۔ کیا آپ انہیں دھمکیاں دینے آئے ہیں؟ ابو منصور کے ساتھ آئے ہوئے ایک سالار نے کہا، کیا آپ ہمیں اس قدر کمزور سمجھتے ہیں کہ ہم مرعوب ہو کر آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے؟ ابو منصور چونکہ بہرا تھا اس لیے وہ اپنے سالار کی بات نہ سن سکا۔ مسعود نے سالار سے بات کی تو ابو منصور وہ بھی نہ سن سکا۔ وہ دونوں کو باری باری دیکھنے لگا اور سٹ پٹاتا تھا کہ یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کچھ مجھے بھی بتاؤ۔ ابو منصور نے اپنے سالار سے کہا، تم لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کاشغر اور بلخ والوں کی دوستی سے باز نہ آئے تو ہم آپ پر حملہ کر کے آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ابو منصور نے مسعود کو غصیلی نگاہوں سے دیکھا اور کہا، دیکھو شہزادے، اگر تم ہمیں دھمکی دے کر ہمارے ساتھ دوستی کرنے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ اور اپنی فوج کے ساتھ آنا۔ مسعود نے ابو منصور کے کان میں بلند آواز سے کہا، اگر حکمران بہرا اور سالار جھوٹا ہو تو ملک اور رعایا کا خدا ہی حافظ ہے۔ محترم، آپ کا سالار آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کچھ اور کہا تھا۔ اگر سالار حکومت کے کاروبار میں اس طرح دخل اندازی کرنے لگیں تو حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ کچھ دیر بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ مسعود نے ابو منصور کو اس حد تک قائل کر لیا کہ اس نے کہا کہ آپ چند دن یہاں رہیں، ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ اتنے دن آپ شکار کھیل سکتے ہیں، آپ کے آرام کا، کھانے اور دل بہلانے کا پورا انتظام کیا جائے گا۔ محل کے باورچی اور ملازم آ گئے اور انہوں نے مسعود اور اس کے تمام آدمیوں کے کھانے وغیرہ کا انتظام سنبھال لیا۔ ایک روز مسعود خیمہ گاہ سے ذرا ہٹ کر اکیلا ہی ٹہل رہا تھا کہ محل کا ایک ملازم جو خیمہ گاہ کے انتظام کے لیے آیا تھا مسعود کے قریب آیا اور رازداری سے کہا، کل شکار کے لیے جائیں، ابو منصور ارسلان خان کی بیٹی سمن تاش آپ کو جنگل میں ملے گی،
मुझे जंगल में कत्ल किया जाएगा या खेमे में? मसूद ने पूछा। आपके मुहाफिज आपके साथ होंगे। मुलाजिम ने कहा। आपको कत्ल नहीं किया जाएगा। अभी जफ़र ने सुल्तान महमूद को बताया था कि सुमनताश अपने बाप के खिलाफ है। सुल्तान महमूद ने मसूद के साथ सुमनताश का जिक्र वैसे ही किया था। एक शहजादी का अपने बाप के खिलाफ होना कोई मायने नहीं रखता। अमारत की फौज पर एक शहजादी का हुक्म नहीं चल सकता था। मसूद ने सुमनताश को कोई अहमियत नहीं दी थी। अब एक मुलाजिम ने उसे कहा कि शहजादी सुमनताश उसे जंगल में मिलेगी, तो उसने इसे धोखा न समझा। दूसरे दिन वो शिकार को चला गया। वो अपने मुशीरों को साथ न ले गया। 5-6 मुहावजों को उसने इस तरह साथ लिया कि उन्हें अपने इर्द गिर्द फैला दिया ताकि किसी तरफ से कोई भी उस पर कातलाना हमला न कर सके। वो घोड़े पर सवार कमान में तीर डाले इधर उधर देखता जंगल में बढ़ता गया। जंगल घना होता गया और हरी भरी सरसब्ज चट्टानें भी आ गईं। उसे अपने मुहावजों के घोड़ों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। एक जगह तो बहुत ही खुशनुमा थी। चौड़े पत्तों वाली बेलें गुत्थम गुत्था होकर दरख्तों के साथ लिपटी हुई थीं। मसूद को वहाँ एक जवान लड़की नजर आई। उसके करीब एक घोड़ा खड़ा था और लड़की के कंधे के साथ कमान लटक रही थी। तुर्कश घोड़े की जैन के साथ बंधी थी। लड़की का चेहरा जिस कदर दिल नशीन था उतना ही संजीदा था। वो चुपचाप खड़ी थी। उसका ये अंदाज पूरा सरार सा लगता था। मसूद ने 15-20 कदम दूर घोड़ा रोक लिया और इधर उधर देखने लगा। अगर आप मसूद बिन महमूद हैं तो घोड़े से उतर कर आगे आ जाएं। लड़की ने कहा। आपके लिए यहाँ कोई खतरा नहीं, मैं सुमनताश हूँ। मसूद घोड़े से उतर कर उसके करीब चला गया। सुमनताश ने उसे घास पर बिठा लिया। मुझे एक जवान लड़की के बुलाने पर यहाँ नहीं आना चाहिए था, मसूद ने कहा, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि आप सुल्तान गजनी की हामी हैं। आपको गलत बताया गया है, सुमनताश ने कहा। मैं सुल्तान गजनी की नहीं, सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परस्तार हूँ। मैं उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हूँ जो सुल्तान गजनी का भी रसूल है। मैं इस रसूल की हामी हूँ कि एक रसूल का कलमा पढ़ने वालों को एक दूसरे का खून नहीं बहाना चाहिए, और अगर एक भाई तख्तो ताज की तमा से अपने भाई का खून बहाने के लिए तैयार हो जाए तो उसके मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? उसे जीने का कोई हक नहीं, सुमनताश ने कहा। उसके खिलाफ जिहाद फर्ज हो जाता है। उनमें एक तो तुम्हारा बाप है, मसूद ने कहा। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ यह है कि उनके खिलाफ जिहाद फर्ज हो जाने तक नौबत ना आए। क्या तुम अपने बाप को इस असूल का पाबंद नहीं कर सकती जिसकी तुम कायल हो? नहीं, सुमनताश ने कहा। मैंने आपको यही बताने के लिए बुलाया है कि मेरा बाप उन्हीं ईमान फिरोशों में से है जिनके खिलाफ जिहाद फर्ज है। आप शायद हैरान होंगे कि कोई बेटी अपने बाप के खिलाफ हो सकती है, लेकिन मैं जिस जज्बे के तहत अपने बाप के खिलाफ हूँ उसे समझने की कोशिश करें। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पेशता रिज़्क़े के कादर खान और तूगान खान की फ़ौजें यहाँ आ जाएं और हमारी फ़ौज के साथ मिलकर एक ताकतवर फ़ौज बन जाएं। आप हमारे शहर को मुहासरे में लेकर उस पर कब्जा कर लें। इससे ये होगा कि खून खराबा कम होगा। हमारी फ़ौज आपकी फ़ौज के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। अगर आपका मुकाबला 3 फ़ौजों से हुआ तो दोनों तरफ एक ही कौम का इतना खून बह जाएगा जितना पहली खाना जंगियों में बह चुका है। सुल्तान जो हिंदुस्तान पर बढ़ चढ़ कर हमले कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि किसी मुसलमान अमारत या रियासत पर चढ़ दौड़ें। मसूद ने कहा, हमारा मकसद कब्जा करना नहीं, आलम इस्लाम को कुफ्र के खिलाफ एक अस्करी कुव्वत बनाना है। अगर हमें आपकी अमारत पर कब्जा करना होता तो सुल्तान मुझे दोस्ती का पैगाम देकर ना भेजते। मेरे अब्बा दोस्ती नहीं करेंगे, सुमनताश ने कहा। उन्होंने आपको दोस्ती करने के लिए कहा है, लेकिन वो उन सलारों और मुशीरों के कब्जे में हैं जो कादर खान के ही दिल का जाल में आए हुए हैं। वो कानों से बहरे हैं, वो वही बात सुन सकते हैं जो उनके कान में कही जाए। सुमनताश चुप हो गई। उसने आंखें सुकेड़ कर एक तरफ देखा, जैसे किसी शिकारी को घनी झाड़ियों में किसी शिकार की हरकत नजर आ रही हो। इसके साथ ही उसने मसूद को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और दरख्त के पीछे कर दिया। वहां बेलें दीवारों की तरह दरख्तों पर चढ़ी हुई थीं। सुमनताश ने मसूद से कहा, यहाँ से हिलना नहीं, इधर उधर देखते रहना, और वो खुद बेलों में गायब हो गई। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।